Hello, good afternoon, ma'am. It's Shora's mother speaking. Yes, ma'am. Yes. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Vansh's mother speaking. Good afternoon. Good afternoon, parents. अभी unmute कर. We'll just wait for 5 minutes and then we'll start when every parent gets connected with us. We'll just start out. Good afternoon, ma'am. Yes, everybody, I want you to just mute yourselves. I'll be on unmute and everybody there should be on mute. Please. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Many Parents, I'll be just unmuting you when I'll be asking the questions or if you have any queries. Otherwise, I'm just muting you all from my side and you will not be able to unmute yourselves. Okay. So please bear this with me. More and more of the parents are joining, so we'll wait for a little more and then we'll be starting with that.
So everybody will just begin with it. Okay. So good afternoon to one and all who have spared their valuable time for this webinar on National Education Policy 2020. This is Kaushika from KC Gurukul Public School to throw some light on this policy. As parents, ये आपको पहले ही पता था because we all have gathered here, connected here through this webinar to discuss on this National Education Policy. सबको पता है कि ये पॉलिसी आई है, डिस्कस हुई है, पार्लियामेंट में पास हुई है, पर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बारे में अभी नहीं पता कि एक्चुअली ये पॉलिसी है क्या और क्यों लाई गई, इससे क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट होगी. ओके, सो विल स्टार्ट विद इट. जस्ट अ सेकेंड. Just a second, parents. It is. Yes. Okay. On July 29th, the Union Cabinet approved a new education policy, and you will be surprised it is approved after a gap of 34 years. इस पॉलिसी को बनाने में हमारी कैबिनेट ने 34 इयर्स के गैप के बाद कुछ ऐसी नई एक पॉलिसी आई. प्रीवियसली इट वाज नोन एज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन which was approved 34 years ago in 1986. 1986 में अप्रूव होने के बाद ये मॉडिफाई की गई 1992 में. कुछ सर्टन मॉडिफिकेशंस लाई गई, ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं लाई गई, बिल्कुल मिनिमल मॉडिफिकेशंस इसमें लाई गई. पहले की जो हमारी पॉलिसी थी 1986 का, आप पहले हम उसको समझेंगे कि उसमें क्या मेन फोकस था, किस लिए वो पॉलिसी थी और क्या उस पॉलिसी में चीजें बताई गई. ठीक है. The main focus of the 1986 policy was regarding access and equity. Access का मतलब है अवेलेबिलिटी और इक्विटी का मतलब है फेयरनेस. तो इस पॉलिसी में सबसे बड़ा मेन फोकस था कि अवेलेबिलिटी हो, एजुकेशन की फेयर अवेलेबिलिटी हो, हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को इसकी फेयर अवेलेबिलिटी हो, सबको एजुकेशन फेयर तरीके से मिले. बिकॉज देयर आर मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स those who are disadvantaged when it is coming to the seeking of education. जब एजुकेशन की बात आती है, बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेज्ड लोग हैं जिनको एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती. कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो एजुकेशन या तो ले नहीं पाते या तो उनको दी नहीं जाती है. तो 1986 में ये जो पॉलिसी थी, इसका मेन फोकस था कि सबको एजुकेशन मिले और फेयर तरीके से मिले. ओके. We have indeed come a long way since 1986. However, the today's thing is all about access to quality education. Previously, it was just having access to education, but today it is more about having the education with the best quality. आज की जो पॉलिसी है, इसमें खाली अवेलेबिलिटी, फेयर तरीके से एजुकेशन मेन फोकस नहीं है. इसका मेन फोकस है अवेलेबिलिटी भी हो एजुकेशन की, फेयर तरीके से भी अवेलेबिलिटी हो और क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए. खाली एजुकेशन से ये कंसर्न नहीं है, बट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड. The major improvement since the last 1986 policy has been the Right of Education Act 2009, which was enacted by the Parliament of India on 9th of August 2009. The main version of the national policy of education is to design a vision and a framework for not only the school education but for the higher education also. ये आपके खाली स्कूल लेवल पे फोकस नहीं करेगी, पर जो हायर एजुकेशन के लिए हम जाते हैं, आगे अपनी ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ये सब चीजें करती है, इनमें उस चीज को भी फोकस दिया गया है, इम्पोर्टेंस दिया गया है. ओके. अब समझने के बाद कि व्हाट बेसिकली ये पॉलिसी है,
पुरानी पॉलिसी से क्यों आई है, कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस थे पुरानी पॉलिसी में जिसकी वजह से हमें एक न्यू पॉलिसी लानी पड़ी. Because all of you know that because there are some drawbacks in the previous policy, कुछ पुरानी चीजों में कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं, इसीलिए हम कोई नई चीज को लाते हैं. तो पुरानी पॉलिसी में भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे जिसकी वजह से हमें ये नई पॉलिसी लानी पड़ी. Up now we'll be talking about the reasons which in turn demanded for the change in the previous national policy on education. So the first reason behind launching National Education Policy 2020 is like by 2035, 50% of the students should complete their higher education. बिकॉज अगर हम एक फैक्ट को देखें, आज अगर हम एक फैक्ट को देखें, खाली यू वोंट बिलीव 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं. बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल्स स्टूडेंट्स दे ड्रॉप आउट. उन्हें कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से हायर एजुकेशन को ड्रॉप आउट करना पड़ता है, वो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते. कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं होता, अर्ली मैरिज हो जाती है, या गर्ल्स की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो हायर एजुकेशन अवेल नहीं कर पाते. जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या टारगेट किया है इस पॉलिसी के थ्रू कि जो 2035 है तब तक 50% जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज 25% हम लेकर चल रहे हैं, वो 50% हो जाएगा उसका नंबर, वो अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर लें. जिसके लिए फॉर दैट गवर्नमेंट व्हाट हैज टू रेज अ पर्क्स. उनको कुछ ऐसे पर्क्स रेज करने पड़ेंगे या कुछ रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा स्ट्रक्चर में ताकि ये हो पाए. बिकॉज 25 से 50 तक पहुंचने का स्टेप इज नॉट इजी. कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से फ्रॉम 25 वी कैन रीच टू 50%. ओके, सो the second reason behind launching this policy of 2020 is to reduce rote learning. Right now, if you look at the education system, it is extremely rote learning based, what we call as ruttification. If you can learn things, if you can mug up things in exams, आप उनको लिख पाते हैं क्रैम करके जैसे भी, then you can clear the exam. But what now if the government is now focusing कि अब जो स्टूडेंट्स को नॉलेज मिले दैट इज मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड. आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल डोमेन में उसको यूज कर पाओ. सपोज लेट मी आस्क हाउ मेनी ऑफ यू, सबने मतलब वी हैव स्टडीड फिजिक्स राइट, 9th और 10th ग्रेड में तो हम सबने फिजिक्स पढ़ी है, पर हम में से ही कितने लोग हैं दैट कैन एक्चुअली गेट अप एंड चेंज इवन अ बल्ब इन आवर प्लेसेस? बहुत कम, बहुत ज्यादा कम. या अगर मैं आपको पूछूं कि अपने बच्चे की क्लास में से एक टॉपर स्टूडेंट को उठाइए और उस टॉपर स्टूडेंट को मैं बोलती हूँ कि आप एक प्रॉपर जॉब एप्लीकेशन लिखिए, क्या बच्चा वो लिख पाएगा? 99% चांसेस है, 95% अगर मैं बहुत कम कर दूं तो 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल पूरी करेक्ट जॉब एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे. क्यों? What is the main reason? Because we don't learn that. We are not taught that. We just mug things up. We just cram them. We just do ratification of the things like that. So now the government wants that each of these things should be eradicated. जो system है that should be more practical than theoretical. Theoretical knowledge को कम करके practical knowledge में अब हम चीजों को ज्यादा लाएंगे. Okay, now comes the third and the foremost reason. The third major issue that they try to address by the means of this new education policy is the importance that they give to the other subjects. Right now, there are various subjects we have learned. अगर हम अपनी qualifications या अपनी
स्टडीज को देखेंगे तो हम देखेंगे हमने बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े जो अगर कोई जॉब कर रहा है या हाउस वाइफ्स भी हैं, अगर आप उनको मेंटली प्रॉपरली बैठ के सोचें कि वो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे, अभी उनका कोई यूज है, आर दे रेलेवेंट, अभी मुझे काम आ रहे हैं, तो हमें ये ऐसा लगेगा कि दे आर हाईली एक्सट्रीमली इररेलेवेंट, उन चीजों का तो कोई काम ही नहीं आया अभी हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी अभी अभी बहुत सारे मोस्टली, अब तो स्कूल्स में पैटर्न चेंज हो गया है, पर पहले बहुत मोस्टली ऐसे स्कूल्स थे जहाँ पे बच्चों को मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स इसलिए लेना पड़ता था बिकॉज ह्यूमैनिटीज या आर्ट सब्जेक्ट्स अगर मैं बोलूँ तो नहीं था, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था ह्यूमैनिटीज एज अ सब्जेक्ट, जिसकी वजह से बच्चे को या तो मेडिकल लेना पड़ रहा था या तो नॉन मेडिकल या तो कॉमर्स, बिकॉज ह्यूमैनिटीज वाज नॉट सच एन ऑप्शन इन द स्कूल अवेलेबल. So now the government wants that now students should have the option to select their subjects that will help them in career. It should not be like that कि अगर एक student है, उसने 11th 12th में physics chemistry maths पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी वो ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ता है, मास्टर्स भी इनमें से किसी में करता है, एंड एट द एंड उसको अपने करियर के लिए ट्राई करता है कि आई शुड गो फॉर द यूपीएससी, और उस यूपीएससी में उसको पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, देन अ स्टूडेंट विल स्टॉप एंड थिंक कि मैंने आज तक अपना एक बेवकूफ बनाया है, हैव आई मेड अ फूल ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज आई हैव लर्न सो मच ऑफ द थिंग्स जो कि मुझे अब काम ही नहीं आ रही है, अब तो मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ रहा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो मैंने इतने सब्जेक्ट्स पढ़े थे, वर दे इररेलेवेंट, मैंने वो चीजें क्यों पढ़ी? So now the government wants to change this scenario. Government पूरा ये सिनेरियो को चेंज करना चाहता है. So every student who enters to the job, whatever he has studied makes sense. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स चुने, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन चुने, कुछ ऐसी चीजें पढ़े कि जब when he enters his job, that subjects या that knowledge should make sense, that should help him in his career, that should help in his practical domain. तो इन चीजों को, इन 3 रीजंस, ये मेन 3 रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया. ओके, अब हम सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि ये पॉलिसी है क्या, पिछली पॉलिसी में क्या कमियां रह गई थी जिसकी वजह से ये न्यू पॉलिसी लाई गई, उसके बाद हमने रीजंस पढ़े. ठीक है, नाउ अब वी विल स्टडी अबाउट द चेंजेस जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की वजह से आई हैं. तो सबसे पहले हम विल लुक फॉर द स्कूल लेवल चेंजेस, कि स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं. ठीक है, so let us now first look at the school level changes made by the government in this new education policy. So now when I was going through this policy, I was so amazed by this policy, like I felt myself going back to my school days. It was just awestruck. ठीक है, अगर आप प्रीवियसली चीजों को देखो, what was the life of a student? He takes birth. After 3 years, he steps into the nursery, then to the kindergarten, and then to the preparatory school. After that, he enters to the main school, class 1st से, और ये सिनेरियो चलता रहता है जब तक वो क्लास 12th नहीं कर लेता. The same things goes like this on. Now, what this education policy has done, इसने चीजों को अब 4 stages में डिवाइड कर लिया है. That is 5 plus 3 plus 3 plus 4. ओके, अब हम इन चीजों को, इन स्टेजेस को सबसे एक एक करके वील अंडरस्टैंड व्हाट दीज स्टेजेस आर, और इन चीजों के हमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, या क्या हमें इन चीजों के बेनिफिट है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज इज द फाउंडेशनल स्टेज. 5 स्टेज इसमें इंक्लूड की गई हैं. सबसे पहले कम्स द प्रिपरेटरी स्कूल, नर्सरी, kindergarten, class 1st, class 2nd. Okay, these are the 5 classes that would be included in this stage. This stage will mainly focus on the language.
अब ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है तो ही आप पढ़ पाएंगे, आपको हिंदी आती है तो ही पढ़ पाएंगे। अब आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपको आती है, वेदर इट इज एनी ट्राइबल लैंग्वेज, वेदर इट इज Good evening, whether ma'am. it is Kashmiri, whether it is any language, you can continue your. Parents, can I have silence? Little bits of the silence, please. It is little disturbing. It is little disturbing, please. Okay. So the first stage would be, just a second. Yeah, the first stage would be the foundational stage, जहां पे बच्चे की मेनली लैंग्वेज पे आपका फोकस किया जाएगा बाय द प्ले वे एक्टिविटीज। उसको लैंग्वेज पे मास्टर कराया जाएगा ताकि वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़े अपनी लैंग्वेज में उसको वो अच्छे से समझ आए। So the main focus of this stage is only to focus on the language your child chooses to study in. Okay, now going to the second stage, which is the preparatory stage. Okay, here we have when the child enters to the class 3rd, class 4th, class 5th. क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक ये preparatory stage हमारी आई। In this stage, what we will mainly focus on the basic knowledge. बच्चे को बेसिक नॉलेज दी जाएगी। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपके टेबल्स हैं, आपकी बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है। इन चीजों पे बेसिक नॉलेज पे आपका मेन फोकस दिया जाएगा व्हेन यू एंटर द प्रिपरेटरी स्टेज। Okay, after completing your preparatory stage, that is up to class 5th, when the child will enter to class 6th, that will include the middle school. This is the stage where the drastic change would take place, where the main amazing development would start. This is the stage he will be introduced with all kinds of subjects, whether it is physics, chemistry, maths, zoology, botany, every subject will be taught. And the main reason behind the teaching of every subject would be बच्चे को पता चल सके उसका इंटरेस्ट किस में है, कौन सा सब्जेक्ट उसको पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है। It is a physics subject, it is maths, it's a dance, vocational subjects हैं कोई, या आपकी हिंदी है, या कोई भी सब्जेक्ट है, बच्चे को कौन से सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। So we need all to look first at all the different fields available. अगर हमें पहले पता होगा कौन कौन से डिफरेंट फील्ड्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, तभी तो इंटरेस्ट चूज किया जाएगा। अगर आपको 3 सब्जेक्ट्स बता दिए हैं और बता दिया है दिस इज कंपल्सरी टू स्टडी, आप इंटरेस्टेड है नहीं है, आपको पढ़ना ही है। बट जब आपको यू आर गिवन विद द वैरायटी ऑफ फील्ड्स यू आर अवेलेबल विद, then you can opt for the interesting subjects you want to choose according to your interest. आप किन सब्जेक्ट्स को आगे जाके परसू करना चाहते हैं, उन सब्जेक्ट्स में आप आगे परसू कर सकते हैं। ओके, now comes the last stage, that is the secondary schooling. This is the final stage. Now it is the time when you have the option to select the subjects which you would like to study and make your career in. And the biggest development that they have made in this field is you have the choice to select from any academic as well as the co-curricular subjects. So as a student now, if your ward can take botany with accountancy, with dance, with debating, and the 5th subject can be history also. पहले हमारे पास ऑप्शन था आप 11th में जाके अपने सब्जेक्ट्स चूज करते हैं और उनमें भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं। लाइक इन नॉन मेडिकल वी हैव पीसीएम फिक्स्ड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आपका फिक्स्ड रहता है, विद इंग्लिश एंड पीएचई और कंप्यूटर्स यू कैन टेक। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैव गिवन यू द वाइड वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस।
कुछ भी बच्चा ले सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन वो बना सकता है राइट फ्रॉम योर क्लास 9, ताकि 9th से वो पढ़ना शुरू करेगा अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स, उस कॉम्बिनेशन को 11th 12th तक जाके उसको बेसिक और ज्यादा क्लियर होता जाएगा एंड ही वुड बी स्टार्ट डूइंग द मास्टरी इन दैट। बिकॉज पहले 11th 12th में 2 बार सब्जेक्ट्स पढ़ते थे हम, वो उसमें उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता था। तो गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी कि 9th से आप अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। आप अपने 5 सब्जेक्ट्स चूज करेंगे और वो सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पीएचई ही रखनी है, आपको कंप्यूटर्स ही रखना है, आप डांस कर सकते हैं, उसमें आप debate कर सकते हैं, क्या देरी की है? आप उसमें अकाउंटेंसी ला सकते हैं। यू कैन चूज फ्रॉम एनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स। ओके, now when the talk is about who has joined by the name Manan, please can I have you on mute? Yes. Now going on to the national education policy for the higher education. Parents, please can I have you on mute? This is creating a disturbance. Please, parents, maintain some decorum. Okay. Now coming to the national education policy for the higher education. Your ward has completed up his like studies till class 12th. Now he goes for the graduation and the masters. So what are the benefits in that? Because ये नहीं है कि अभी हमारा बच्चा तो छोटा है, उसको टाइम है, समझ आ जाएगा। You have many people around you जिनकी स्टेज होगी, जो ग्रेजुएशन करने वाले होंगे या जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले होंगे, तो इनकी नॉलेज हमें भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओनली वी कैन स्प्रेड द नॉलेज, देन ओनली वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस। तो इन चीजों में गवर्नमेंट ने क्या किया है, जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, suppose you are doing a graduation which is of 3 years. Okay, now government has made the entry and exit at every level. आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया अपना, आपको कॉलेज छोड़ना पड़ता है, किसी अपनी डिग्री छोड़नी पड़ती है किसी एक रीजन या किसी दूसरे रीजन की वजह से, यू कैन लीव दैट, वहां पे आप छोड़ दीजिए। आपको 1 ईयर का यू विल गेट दी डिप्लोमा, योर एजुकेशन इज नॉट वेस्टेड। अगले साल 1 साल का गैप छोड़ के या 2 साल का गैप छोड़ के अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने का वापस से चांस मिल रहा है, या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो आप सेकेंड ईयर में दोबारा से एडमिशन ले सकते हैं। आपको फर्स्ट ईयर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You will complete, you have completed your first year, that is okay. Now you will go to second year. वहां पे अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अपना सेकेंड ईयर कर लेते हैं, देन ऑल्सो यू विल गेट अ डिप्लोमा। आप ब्रेक्स में अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। इफ यू कंप्लीट फर्स्ट ईयर यू विल गेट अ डिप्लोमा, if you complete your second year you will then also get a diploma, and after completing the full 3-year course you will get a degree. मतलब आपकी एजुकेशन कहीं भी वेस्ट नहीं गई। पहले साल की वजह से अगर आपको छोड़ना पड़ता है, आपके पास डिप्लोमा है, दूसरे साल छोड़ना पड़ता है तो भी डिप्लोमा है, 3 साल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, यू हैव अ फुल फ्लेज्ड ग्रेजुएशन डिग्री। सेम गोज फॉर 4th ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑल्सो। जैसे कई लोग बीटेक करते हैं, बीई करते हैं, लॉ करते हैं, उनकी 4 इयर्स की डिग्री होती है, उनके पास भी यही सेम ऑप्शंस हैं। सब लोगों को पता है, जैसे बैंक के पास होता है सिबिल स्कोर, हमारा होता है कि जैसे जितना अच्छा हमारा स्कोर होगा उतनी इजीली हम लोन्स ले सकते हैं या उतनी इजीली फैसिलिटीज अवेलेबल है हमें। सेम इज द केस नाउ गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड फॉर दिस। अब हमारे पास एजुकेशन में भी एक स्कोर रहेगा, क्रेडिट स्कोर रहेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस को अलग अलग क्रेडिट्स दे देगी। लाइक परेड कॉलेज वुड बी होल्डिंग दिस, बॉयज कॉलेज वुड बी होल्डिंग दिस क्रेडिट।
तो जब आप वापस से आपको रीजॉइन करना होगा या जब आपकी लास्ट में बैचलर डिग्री पड़ेगी, जितने अच्छे क्रेडिट स्कोर्स आपके पास होंगे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी। और ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर छोड़ दिया तो आपका जो पुराना क्रेडिट स्कोर है वो खत्म हो जाएगा। नो, ये एक हमारे पास ऑनलाइन डाटा रहेगा। हर एक स्टूडेंट की नाम की एक पर्टिकुलर फाइल होगी, सॉफ्टवेयर में स्टोर होगी, प्रॉपर फाइल होगी, जिसमें आपका स्कोर हमेशा डेवलप होता जाएगा जैसे जैसे आप अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करते जाएंगे। तो नाउ योर एजुकेशन इज नो वेयर वेस्टेड। हर एक लेवल पे आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी प्रॉब्लम की वजह से छोड़ना पड़ रहा है, नो इश्यूज, यू कैन डू दैट एंड देन यू कैन अगेन स्टार्ट विद इट। ओके, yes. Okay, now coming to the second reason, like the higher education institutes will now have the option of offering 1-year master's degree. पहले हमारे पास क्या होता था, पीजी करनी होती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती थी, वी हैव टू डू इट फॉर 2 years, right? Now the government has reduced it to 1 year. अंडर ग्रेजुएशन लोग जो हैं जिनकी 3 years की डिग्री होगी, उनके लिए जो हमारी मास्टर्स होगी दैट विल बी ऑफ 2 years, और जिनकी डिग्री 4 years होगी, ग्रेजुएशन डिग्री 4 years होगी, उनके लिए मास्टर प्रोग्राम विल बी ऑफ 1 year। और इस मास्टर प्रोग्राम में क्या होगा, जैसे हमारे पास सपोज वी आर डूइंग अ 3 years डिग्री प्रोग्राम जिसमें हमारा बीएससी आ जाता है, बीकॉम आ जाता है, बीए आ जाता है, उसमें आपका जो सेकेंड ईयर होगा उसमें द मेन फोकस विल बी ऑन रिसर्च, फील्ड वर्क की प्रैक्टिकल नॉलेज आप जितना भी गेन कर पाए उस सेकेंड ईयर में आपको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज, रिसर्च नॉलेज दी जाएगी। और अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री के बाद ये कोर्स करते हैं, जो आपका 1 year होगा, वो आपका पूरा फोकस आपका फील्ड वर्क और रिसर्च वर्क में जाएगा। ओके, नाउ the fifth is government has discontinued MPhil programs. Now there would be no masters in philosophies. आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर योर PhDs एंड doctorate of PhDs. Now you don't have to go for MPhils. पहले लोग सोचते थे कि MPhil कर लेते हैं, थोड़ा रिसर्च नॉलेज ज्यादा हो जाएगा, फिर PhD करेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है। MPhil program is discontinued whenever this policy would be followed. And there would be no hard separations between arts and sciences. अब there can be the combinations of any subjects. अब आपके पास ये नहीं है कि मैंने लेना है, मैंने खाली फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़नी है, मैं हिस्ट्री नहीं ले सकती फिजिक्स के साथ, या मेरे पास ये कॉम्बिनेशंस नहीं है। अब हर स्कूल में ऐसा होगा, जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी, आपके पास ऑप्शंस पूरे ओपन होंगे। कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, जिसमें आप वोकेशनल चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं। सपोज योर चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन डांसिंग, पर साथ में साथ उसका इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ भी है, पॉलिटिकल साइंस की तरफ भी है, पर उसको फिजिक्स भी पढ़नी है, तो आप अपने चाइल्ड के मुताबिक या अपने मुताबिक जैसे आपका चाइल्ड को सूट करेगा, आप वैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू इन दैट। बिकॉज जब तक आप 9th स्टैंडर्ड में आएंगे, मोस्टली एक बच्चे के दिमाग में समझ आ जाता है कि आई हैव टू गो फॉर दिस करियर, मुझे अपना करियर इस चीज में बनाना है। तो उसके लिए सब्जेक्ट्स चूज करना अपने करियर के हिसाब से वुड बी क्वाइट इजी, क्योंकि जब आप अपने करियर के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो आप उनको मोर पैशनेटली पढ़ते हैं। कोई आप फोर्सफुली कोई सब्जेक्ट रखवाएंगे अपने बच्चे को या कुछ ऐसा होगा, तो वो उस सब्जेक्ट में हमेशा वीक रह जाएगा, बिकॉज वो उसको पैशन से, इंटरेस्ट से नहीं पढ़ता। तो नाउ द गवर्नमेंट हैज गिवन अस द ऑप्शन कि ये आर्ट्स और साइंसेस का कोई सेपरेशन नहीं रहेगा, ये सब एक क्लब्ड अप है, जिसमें से सारे सब्जेक्ट्स में से चूज आपको करना है, बच्चे को करना है। ओके, नाउ एक और चीज की अब हमारा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है।
जैसे यू वुड हैव सीन कि फार फ्लंग एरियाज में ऐसा होता है, सबको इंग्लिश तो नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, उनकी पहाड़ी है, कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं बिकॉज उनको वो लैंग्वेज आती नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया है, द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड दिस बैरियर। अब कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, स्टूडेंट जो उसको लैंग्वेज आती है 5th क्लास तक उसी लैंग्वेज में हर सब्जेक्ट पढ़ सकता है, उसी लैंग्वेज में उस चीज को लर्न कर सकता है। ओके, Sanskrit will be offered at every level of the school or the higher education as an important enriching option for students. Sanskrit has been made compulsory. चाहे आप स्कूल लेवल एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, संस्कृत इज कंपल्सरी फॉर यू टू लर्न। अब आपके पास ऐसा भी ऑप्शन है कि आपको एक इंडियन लैंग्वेज आपको प्रॉपरली लर्न करनी है, और सेकंड जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो एक फॉरेन लैंग्वेज आपको प्रॉपरली लर्न करनी है। ओके, और एक और चीज जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन इंक्लूड की है गवर्नमेंट ने, फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स आप अगर इंटरेस्टेड है कोडिंग में, लाइक सम पीपल आर वेरी शार्प एट कंप्यूटिंग, उनको कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, वेयर एज कई स्टूडेंट्स होते हैं दे आर मोर नेचर लविंग, इको फ्रेंडली, तो वो गार्डनिंग की तरफ थोड़ा उनको ज्यादा होता है, कई लोगों को पॉटरी की तरफ ज्यादा होता है। तो नाउ यू हैव ऑप्शंस फ्रॉम क्लास 6 आप ये सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। आप इन चीजों के लिए आपको प्रॉपर स्पेशल ट्रेनिंग ली जाएगी। किसी को प्लम्बिंग में इंटरेस्ट है, किसी को आर्किटेक्चर में किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो ये सब वोकेशनल चीजें, इनकी आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाएगी जिसकी वजह से आप ये चीजें लर्न कर सके। सो टू समराइज, अब मैं इस पूरी चीज से अगर मैं इस चीज को शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो अब नाउ इंडिया इज वांटिंग व्हाट इंडिया वांट्स, India wants to be a global superpower in terms of knowledge. अब इंडिया को वॉर्ड्स के या कुछ ऐसे रिलेटेड में सुपर पावर नहीं बनना, अब इंडिया को इन टर्म्स ऑफ नॉलेज इंडिया वांट्स टू बी दी सुपर पावर। ओके, बिकॉज पहले हमारे पास ऐसा था, हम बोलते थे बाहर की एजुकेशन ऐसी है, बाहर पेरेंट्स ऐसे पढ़ाते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है 2020। ओके, सो that was all from my side, and parents, that is really grateful you spared so much of this time, and if you have any queries please you can just unmute one by one and ask the query. I would be glad to clear that. Anybody, any query? Parents, do I have any query? No, ma'am. Is that all No, ma'am. clear? I hope आप सबने Yes, ma'am. सेशन एंजॉय किया एंड आपको कुछ इसमें से इंफॉर्मेटिव। हाँ जी Ma'am, when will this policy be implemented in schools? ma'am, it has been planned yet to be implemented in 2022 by the government, and but we are also looking forward कि जितनी जल्दी हो सके, पर ऐसा टाइम दिया गया है by 2022 it would be implemented. Yes, any more queries? Any more queries, parents? Okay, thank you for your so valuable time. I love just speaking to all of you. Thank you so much, everybody. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am.